जो व्यवहार हमारे चेयरमैन का है हाउस में, उसमें हम लोग अपोजिशन वाले वी फील डिप्राइव्ड कि हम लोग को अपनी बात उठाने का पूरा मौका नहीं मिल रहा है। और जो ट्रेजरी बेंचेस है, जब वो जहां चाहते हैं जब चाहते हैं उनको पूरा मौका दिया जाता है, पूरा बोला जाता, बोलते हैं अपनी बात। हम लोग को जैसे ऑपोजिशन वालों को जैसे चांस मिलता है कि भाई 0 आवर में या इसमें जो सवेरे वाली कार्रवाई होती है उसमें अपने लीडर ऑफ ऑपोजिशन को भी काफी जब जैसे मौका देते वैसे साथ साथ वो हाउस स्थगित कर देते। तो यहाँ पर ये सवाल एकदम उनके पार्टीशन होने का उठ रहा है और लिहाजा इसी के लिए सारी ऑपोजिशन पार्टियां मिल करके ये रिमूवल का नोटिस दी। All are witnessing what is happening in the parliament for the past 1 week. There's a blatant attack on the democracy of this country in the parliament by the ruling party, and they are guarded by the chair. Is a very sad thing we have to point out. As the leader of opposition said, in a parliamentary democracy, the leader of the house and the leader of opposition are the main two pillars. We have experienced in the past when BJP was in the opposition and when Congress was also in the opposition. Whenever the opposition leader stands up to speak, and especially yesterday and today, they are making personal remarks. Yesterday, a remark was made against Rahul Gandhi, the leader of opposition in the Lok Sabha. And when I raised the point of order, the chairman said that it is upheld and the ruling is reserved. But again today, Sonia Gandhi was attacked. The extreme from the opposition, from the ruling party side, she is also a member of the house, a senior leader. And never an allegation should be made against a member is the rule. So they are making complete, total remarks and everything goes on record. That is the sad point. That is the annals of the history of the parliament and the proceedings. So the voice of the opposition party is totally triangle. We never expect this. And whenever the deputy chairman comes to the chair, he never looks at our side. We will be shouting, showing the rules book, stretching our hand, everything. He will never even look at the side, and he will allow them to speak and then adjourn the house and go. So we are in such a situation, we want to bring out to the people what is going on in the parliament. The parliament is a debating forum. The ruling party should listen to the opposition party's voice. We are voicing the people's views. What is going on in the country? Whereas we are not at all allowed to speak means it is a blow on parliamentary democracy, and the democracy of this country is in peril. We are celebrating the 75th year of adopting the constitution. It is not enough that we celebrate it, but the spirit of the constitution has to be upheld. Totally everything is thrown to dust. The ruling party is doing whatever it wishes to. The chair is supporting, and we have no other option. Through you, we are telling the people, now that in this situation, the opposition parties are striving their best to restore democracy and to take this country as it was in the earlier days. This is the situation. And that compulsion only has made all of us to move a no confidence motion because we have tolerated enough. Thank you very much. समाजवादी पार्टी की तरफ से मैं पूरी तरह उससे अपने आप को शपथ करता हूं। जो परिस्थितियां हैं वो आप सबके सामने हैं। राज्यसभा के अंदर विपक्ष की मौजूदगी को हमारे सभापति जी ने पूरे तरीके से नकार दिया है। मैं एक टर्म पहले राज्यसभा में रहा था 2014 से 2020 तक, और अभी मुझे 2.5 साल करीब हुए हैं दोबारा दूसरी टर्म में। एक सेंटेंस नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, ये मैंने जो 6 साल में नहीं सुना था उससे कई गुना ज्यादा बार मैं अभी 2.5 साल में सुन चुका हूं। अपोजिशन पार्टीज के कोई भी नेता कोई भी बात कहना चाहते हैं, वहां से ये आदेश जारी हो जाता है, नथिंग विल गो ऑन द रिकॉर्ड। तो मैं इस स्थिति को बहुत सुखद या अच्छी नहीं समझता कि देश के दूसरे नंबर के सबसे बड़े पद के खिलाफ हम लोग
रिमूवल का नोटिस लाए, लेकिन उनके कर कमलों ने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी है कि हमको मजबूरी में उनके खिलाफ ये नोटिस लाना पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। दिमाग रखती है तो उससे विलग एक दो चीजें ही हैं जो अपने दल की तरफ से मैं कहूंगा। ये व्यक्ति का मसला ही नहीं है, व्यक्ति की गरिमा का भी मसला नहीं है, ये व्यवस्था के पुनर्स्थापन का मसला है। और ये हम सब के लिए, आप चाहे कोई भी बीट कवर करते हो, संसद की गतिविधियों पर आपकी नजर होती है। संसद में हमारे प्रतिरोध को भी आपने आज तक देखा नहीं होगा। अगर हम में से दो चार लोगों की आवाज से वाकिफ हैं तो आपको लगता होगा कि फलाने साहब ये स्लोगन लगा रहे हैं या चिनाना व्यक्ति ये स्लोगन लगा रहा है। कि ये जो ब्लैकनिंग आउट जो अब तक संसद की टेलीविजन किया करती थी, अगर सत्ता पक्ष की सहमति से अगर इस प्रकार से इनविजिबलाइज करने की कोशिश हो, आपको आपकी बातें रखने का मौका न दे, तो इसलिए मैंने कहा कि व्यक्ति का प्रश्न ही नहीं है। रिस्टोरेशन ऑफ द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मेरे सारे साथी हमसे बेहतर जानते हैं। आज ही एक अंग्रेजी दैनिक में अपना एडिटोरियल लिखा है, बोथ द साइड शुड मूव बट द रूलिंग पार्टी शुड मूव लिटिल मोर। ये हमने एडिटोरियल नहीं लिखा। कल अगर आपने कल या परसों का आपने अगर प्रोसीडिंग्स देखा हो तो एक एक करके सत्ता पक्ष के ऐसे लोग जिनके लिए व्यक्तिगत बहुत सम्मान था, लेकिन आप जिस प्रकार की भाषा शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं उससे सिर्फ ना हमें पीड़ा होती है, हमें लगता है कि कल को जब सत्ता परिवर्तन भी होगा, क्या हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को रिपेयर कर पाएंगे, रिस्टोर कर पाएंगे? कितने मुद्दे लेकर के हम जनगण मन जिस दिन होता है संसद में, कितने मुद्दे थे, चाहे एक व्यक्ति विशेष का प्रधानमंत्री जी के साथ नजदीकी ताल्लुक का मामला हो जो अमेरिका में आया, या संभल की हिंसा हो, या मणिपुर हो, या बेरोजगारी का मसला हो, सारे मसले आपने खारिज कर दिए, माय वे और हाईवे। ये इसलिए मैं आखिर में यही बात कहूंगा कि ये पूरी कोशिश किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, एक संस्था का किस प्रकार मनसा वाचा करना में व्यवहार हो और कैसे हम रिस्टोर कर पाए द फाइनेस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। थैंक यू सो मच। खड़गे साहब ने पूरी बात आपके सामने रखी है। ये मंच पर इस देश के सभी नेतागण हैं जो संविधान और डेमोक्रेसी बचाने के लिए एक साथ आए। मैं देखता हूं, मैं सदन में लगभग 22 साल से और लगभग 4 चेयरमैन को मैंने देखा। वेंकैया जी थे, भैरव सिंह शेखावत जी थे, 2 बार हमीद अंसारी जी थे, लेकिन आज जो स्थिति में देख रहा हूँ पहली कड़ी में इतनी भयंकर स्थिति है और हमारे चेयरमैन साहब मजा लेते, वो संसद नहीं चलाते, सरकार चला रहे। इस तरह से अगर देश के पार्लियामेंट कोई चलाएगा तो देश में ना संविधान रहेगा ना डेमोक्रेसी रहेगा। यहाँ जो बैठे हैं सब नेतागण हैं, अनुभव है सभी का अपना अपना देश के सेवा के प्रति, लेकिन जो चेयर पर बैठे हुए व्यक्ति है वो सबसे पहले सदन शुरू होने के बाद लगभग 40 मिनट अपना लेक्चर सुनाते, समय को भी खा लेते और बाद में जो समय होता है वो इंकरेज करते हैं दंगा करो सामने, और हम एक हड़बड़ से ये सब देखते हैं और बाहर। इतनी बड़ी संस्था है पार्लियामेंट, हमारा इतिहास है, लेकिन इस इतिहास को खत्म करने का काम ये चेयरमैन साहब कर रहे हैं, तो हमारे सामने दूसरा कोई विकल्प नहीं है। उनको भेज हमारे बात
देश के सामने है। और ये लड़ाई जो ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण संस्था है पार्लियामेंट, राज्यसभा, वो बचाने के लिए है और हम लड़ेंगे। थैंक यू। History of parliamentary history of India. This is not because that we are opposing BJP, who are trying to destroy the basic fabrics of constitution. I'll just remind you, in the Constituent Assembly debate, when the question of speaker came up, it was discussed and said, though you are speaker, but you are not to speak. The role of a speaker is not to speak himself, but allow the opposition and the other members to speak. The House is the area of accountability, which is the parliamentary democracy essence. Now, this accountability has to be ensured where the speaker has to play the role of really an umpire. Here we find the speaker speaks of himself. Speaker feels proud, I mean the chairman. In the House, he extols RSS. He doesn't hesitate to say that I belong to RSS and RSS is so. If someone who expresses his opinion, being on the chair, in fact exposed himself to be not impartial, and that is the foundation of moving this resolution. He is not only expressing his own opinion, he allows the treasury bench to speak much than that of the opposition, because the opposition's obligation is to the country to speak at the House to bring out different issues. Therefore, we are not happy that we have to move this resolution, but we are bound to move this resolution at the junction of the Indian parliamentary democracy, where constitution is under attack. And this is another facet of attacking the constitution, with the role of the chairman is not very happy. If you say that he is not only impartial, he is definitely partial in favor of the ruling class, in favor of the ruling dispensation. That's the reason, and others, all are saying we agree to that, and we feel the Indian people will appreciate our stand and also encourage us to move forward with these resolutions. Thank you. Thank you, Vikas Babu. मैं सरफराज अहमद, झारखंड मुक्ति मोर्चा। हमारे योगी साहब ने जो आज कहा है, रेजोल्यूशन है, हम उसका पूरा समर्थन करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जैसे व्यक्ति जो हिंदुस्तान के चारों सदन का मैं मेंबर रहा, बिहार असेंबली, झारखंड असेंबली, लोकसभा और ऊपर वाले का विश्वास का राज्यसभा, लेकिन अपनी संसदीय कार्य जीवन में मैंने ऐसा अध्यक्ष नहीं देखा। 40 साल से ऊपर का जीवन हमारा है केवल हाउस के अंदर, और बहुत मजबूर होकर पीड़ा के साथ जो इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद किया जा रहा है, इसके खिलाफ आगे बातें में हम लोग उसका समर्थन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बात की है, आपके ध्यान में ये बात आई होगी कि आज हम संसद के अंदर आनी बानी का सामना कर रहे हैं, और संसद में हमारे माइक्स मॉनिटर सेंसर होते हैं, हमारे कैमरे सेंसर होते हैं। हम लोगों को कितना हम बोले उतना हमारा मेजरमेंट के साथ हमारी बात होती है, और ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से वो जो चाहे कितना भी हमें बदनाम करें, कितना भी हमें बुरा बोले, वो उनको इजाजत देती है। तो ये चीज से इस बात का एहसास होता है कि विपक्ष, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको एक चेक्स एंड बैलेंसेस के सिस्टम में उतनी ही ताकत दी है जितनी के सत्ताधारियों को, लेकिन आज विपक्ष को पूरी तरह उनकी आवाज दबा के समाप्त करने का काम हो रहा है, ऐसा हमें महसूस होता है। और संसद पूरी तरह एक इवेंट मैनेजमेंट की तरह चल रहा है, क्योंकि आपने सबने देखा होगा कि हमारे कैमरों पर ज्यादातर चेहरा आपको चेयरमैन का ही दिखता होगा, डेप्यूटी स्पीकर का ही दिखता होगा, मेंबर्स का नहीं दिखता है, ऑपोजिशन का नहीं दिखता है। इसी से आपको पता चलेगा
कि पार्लियामेंट का जो प्रसारण होता है ये इसलिए होता है कि देश देखे कि पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, लेकिन पार्लियामेंट में क्या हो रहा है ये देश नहीं देख पाता है, क्योंकि पार्लियामेंट में सिर्फ वही दिखाया जाता है जो चेयरमैन चाहते हैं या सत्ताधारी चाहते हैं। और इसीलिए हम सब आज मजबूर हैं, और जिस तरह मेरे साथियों ने यहाँ कहा है वो सारी बातों से मैं सहमत हूँ, और इसलिए आज मजबूर होकर हम ये नोटिस देने पर मजबूर हुए। शुक्रिया। साथियों, आपका बात बुलावा हो गया, तो ये सवाल आप उठाने वाले थे, इसी के लिए मैंने संसदीय कार्य मंत्री ने भी कहा कि नंबर्स नहीं है, विपक्ष लेकर आ रहा है, और तो खुद उन्होंने खड़े होकर कहा कि हम चेयरमैन के साथ खड़े हैं, सरकार चेयरमैन के साथ खड़ी है, तो विपक्ष लेके आते हैं। इस पर आपका क्या? नंबर्स आप लोगों के पास नहीं है, सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि विपक्ष के पास नंबर नहीं है, वो लो कॉन्फिडेंस मोशन भले ही लेके आए, और हम चेयरमैन के साथ खड़े हैं और सरकार चेयरमैन के साथ खड़ी है। इस पर आपका क्या? पहले अलाउ करने को नंबर पहले नहीं बोलते, नंबर ऑटोमेटिकली जुड़ जाते हैं और उस वक्त वो मिलते रहेंगे, तो हम जमाएंगे। अभी चेयरमैन साहब आज कुर्सी पर बैठे थे, आप क्या इस पर बोलना चाहेंगे कि उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस दिया हुआ है, क्या अभी भी उनको चेयर पर बैठना चाहिए? और साथ में एक सवाल ये भी है कि सर, इंडिया अलायंस की लीडरशिप ममता बनर्जी को देने की प्रस्ताव का रेजोल्यूशन जो हम दिए, जब आएगा आपको मालूम होगा कि लोग इकट्ठे होकर उनके खिलाफ इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करेंगे। और अभी कुर्सी पे इसलिए बैठे हैं कि जब तक उनको नीचे उतारते नहीं तब तक वो बैठे ही रहेंगे, और उनको आदत है कि अगर आप मत बैठो बोले तो भी बैठेंगे, और इसलिए आप देखते रहेंगे हम लोग पूरा कोशिश यूनाइटेड हमारे जो सभी पार्टी के नेता कर रहे हैं, इसमें हमको यश मिलेगा। सर, अंबिका, टाइम्स ऑफ इंडिया से अविश्वास प्रस्ताव। मेरा सवाल ये है कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात चल रही है पिछले सेशन से चल रही है, और इट वाज इन द वर्क्स, बट अब क्योंकि 14 दिन भी नहीं बचे हैं, इसको लेके आपका क्या कहना है? बिकॉज आगे का क्या प्रतिक्रिया रहेगा? और क्योंकि बात यही हो रही है कि नंबर्स तक पहुंचने के लिए पहले ये मिड 14 डेज का एक बहुत स्टिपुलेटेड वो है, उसको लेके आपका क्या? नंबर तो जुड़ जाएंगे, नोटिस हम दिए हैं। आप जो कहते हैं कि 14 दिन का इसको होना चाहिए, अगर ये नोटिस जाने के बाद उनको अगर लगा, क्योंकि उनको भारी बहुमत है इसीलिए वो चाहते हैं कि ऐसे समस्या को जल्दी हल करना है, और वो उसको अगर कंडेम करके सस्पेंड करने का अधिकार स्पीकर को है, अपने चेयरमैन को है, तो क्योंकि कोई रूल को वो सस्पेंड कर सकते हैं, तो वैसा अगर मौका हमको मिला तो हम प्रूव करेंगे और बताएंगे। सर, आपने अपने बयान में कहा खालिद साहब कि आपने ये प्रस्ताव जो लाए हैं आप लोग विद द सोल पर्पस ऑफ सेफगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। सर, एक तरफ आप कॉन्स्टिट्यूशन को सेफगार्ड करने के लिए प्रस्ताव ला रहे हैं, दूसरी तरफ सर हम सब देखते हैं कि आप लोगों को बोलने का मौका बिल्कुल नहीं मिलता है सदन में, तो किस तरह से ये आपकी जो मतलब किस तरह से आगे रूपरेखा क्या होगा, किस तरह से आप इसको आगे ले जाना चाहते हैं? लोकतंत्र को ठीक ढंग से चलाने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलने देना चाहिए, यही हमारी सबकी मंशा है। तो इसीलिए तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन से हटके जो काम कर रहे हैं उनको हमें बताना चाहिए, भाई कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आपको ये पद मिला है, आपको ये काम करना चाहिए। फिर दूसरी चीज, जब अपोजिशन का रोल क्या होता है वो हम बताएंगे, और वो अपोजिशन को कुछ भी जब मानते नहीं
उनके तरफ ध्यान नहीं देते, तो उनका ध्यान आकर्षित करना और उनको ये कहना कि भाई तुम्हारा काम रूल्स के तहत चलना है, रूल्स के खिलाफ नहीं है। आपका काम विपक्ष को मदद करना, जितने यानी जो आप रूलिंग पार्टी की तरफ देख रहे हो वो छोड़िए, जनता की समस्या को लेकर विपक्ष क्या कहता है उधर आप देखिए, ये उनको हम मनवाना। BJP president made allegations saying that this is an attempt to divert attention from the BJP's allegations against the Congress. So how do you respond to those charges? Some allegations or they have an issue. As the chair advises us under the procedure of the law, there are substantive motions. You cannot be doing a 0 hour. 0 hour is for 3 minutes. शिवाजी ने कहा वो ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो विषय राज्यसभा में प्रस्ताव नहीं कर सकते वो विषय खुद ही हमारे चेयरमैन साहब करके रूलिंग पार्टी के सदस्यों को मौका देते हैं, और रूलिंग पार्टी के सदस्य रूल्स के तहत बात करने का छोड़ के वो अटैक करते हैं अपोजिशन में। राहुल गांधी जी लोकसभा के सदस्य हैं और यहाँ पर उनका विषय उठाना ये रूल्स के खिलाफ है। अगर उनको करना है तो लोकसभा में उठा सकते हैं। एक दूसरी चीज, श्रीमती सोनिया गांधी जी सीनियर मेंबर है और कोई संबंध नहीं है, और उनको हम जब कहते हैं कि हमसे कोई वास्ता नहीं है, तो तब रूलिंग पार्टी के लोग उठ कर उनका नाम लेते हैं। नाम भी अगर लेना है तो आपको नोटिस देना पड़ता है कि मैं इनके खिलाफ ये एलिगेशन लगा रहा हूं, ऐसा आपको कहना पड़ता है और रूल्स के तहत बताना पड़ता है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो हमारे चेयरमैन साहब हैं ये अपने आप पूरा सदन चला रहे हैं, खुद ही बोलते हैं, खुद ही उत्तर देते हैं, खुद ही लोगों को उठाते हैं, खुद ही फिर उनको समझाते हैं, और इधर हमको छोड़ देते हैं। जो असली सवाल है उसका कोई उत्तर। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।